Swami ji in spotlight. Okay. And I'll put Anand ji. Anand ji, unmute yourself. Please unmute yourself. There's a red mic button. If you are not able to do it, I'll have to move to the other participant. Okay. So you take your time, figure out. I'll put Madhu Kumar. You're suffering from BP and heart issues. Madhu Kumar. सुन नहीं पा रहे हैं क्या बहुत सारे लोग मुझे okay, so there is also I only have BP issues, not to worry. So Madhu Kumar, can you unmute yourself? Unmute yourself. Yes. Go ahead. Go ahead. Hello. Please go ahead. There is voice at your back. Somebody is watching something. So please go ahead, Madhu Kumar. Sir, can you hear me? Yes. Yes. We can hear. Yes, sir. Actually, I am suffering from high BP from past 3 months. Actually, in my office, there is a health checkup in February. So, and at that time, it's How very much good. is your BP? How much is your BP? Actually, earlier it was above 170 by 90, 100. Okay. Now I am I'm taking medicine. But So you know what is the problem in you? The problem is your relaxation ability is very weak. The ability of the body to relax. correct. So you will also feel that your mind doesn't stop. Correct. Exactly, Guruji. Right. So if you pick up something, it will not go out of your mind. It will just it'll get stuck in you. So this is called as Vyana dosha. You can also see your exhaling strength is weak. If you try to inhale for a count of 10 and exhale just double of that, 20, it will be very, very difficult. The detox factor is also weak in your body. Body is not able to throw out toxins properly. Right? So many people suffer from constipation if they have a Vyana dosh. They have a certain level of constipation also. So Vyana is related to the strength of exhalation, is related to the detox, is also related to how things move inside your body, how much it spreads out inside your body. It is also a structure maintaining strength of your body, which maintains the structure of the body, the proportion of the body. So if we correct the Vyana, Kumbhak, we will give you Vyana Kumbhak and it will get corrected and you'll see. See, the physical problem, whatever intensity of disturbance you get into, but if it is in mind, then it creates a lot of disturbance. So you'll have to handle that, and Kumbhak will handle that. There is no medicine which can handle that. Let me tell you that also. Right? महेश बत्रा जी, are you able to unmute? क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट करें. जी सर. हाँ, आ जाइए. Just briefly tell about your problem. सर मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन लो है और पुराना पेशेंट हो, कॉन्स्टिपेशन है बहुत 50 साल का. मेन चीज है बीपी ठीक है, डायबिटीज नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, सब कुछ ठीक है. वो पता नहीं कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, उससे हो गया, अभी 20% है. आपके साथ में इशू क्या है मैं आपको बता देता हूँ. हम्म. प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ. ठीक है. आपका शरीर कफ शरीर है. कफ का शरीर है. कफ वात पित्त कफ होता है ना. कफ मलाई ज्यादा है आपके शरीर में.
छन्नी में, चाय की छन्नी में मलाई अगर जम जाए तो चाय नहीं छनती ना। तो आपका शरीर वो है जिसकी छन्नी में मलाई जमी हुई है हर जगह पे, तो कोई भी चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने में उसको मुश्किल लगती है। जिसको आप केवल इजेक्शन फ्रैक्शन कह रहे हो, मैं उसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई भी चीज मूव करने में तकलीफ होती है, स्लोनेस है। इसी वजह से ऐसे में क्या देखा जाता है, बॉडी में स्टिफनेस भी होती है। सुबह सो के उठोगे तो पूरी बॉडी स्टिफ मिलेगी। एसिड रिफ्लक्स होता है, खाएंगे तो ऊपर की ओर ऐसा आता है, एसिड ऊपर की ओर आएगा। ऐसे लोगों में सिर में भारीपन भी रहता है, सिर में भारीपन रहेगा, कई लोगों में होता है। जोर लगाएंगे बड़ी जल्दी हांफने लग जाएंगे, थक जाएंगे। जोर लगाने पे थक जाएंगे, जल्दी हांफने लग जाएंगे, ज्यादा जोर लगा लिया। कफ दोष है आपके शरीर में, गर्मी कम है, भोजन पचाने की गर्मी भी कम है। ठीक है, तो कुंभक करेंगे ये सारी, ये बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दवाई से नहीं होगा ठीक, दवाई से नहीं होगा, इंजेक्शन फ्रैक्शन दवाई से नहीं होता ठीक। कुंभक करेंगे ठीक हो जाएगा, और भी बाकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। जो भी रही है प्रॉब्लम वो सब ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। Mohan ji, you put on your camera for a little while. Are you able to unmute yourself? So, Swamiji, he has a lot of issues. He is only 45. He has valve issue, has BP, and brain hemorrhage 10 years back. He's only 45. So, Mohanji, would you? I hope I've captured your problem. In case you're not able to unmute yourself, ask. हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। हाँ सर। हाँ सर, देखिए मेरा ये एज 45 है। बेसिकली मैं आईटी में काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बीपी आया है। मैं 31 या 32 एज में मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया, टाइनी ब्रेन हेमरेज। तो मेरा राइट पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया पूरा डिसेबिलिटी, मतलब नमनेस हो गया, कुछ जान नहीं है। 3 दिन आईसीयू में था और 8 मंथ्स का अपोलो में ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक वो ये किया। अब ठीक हूँ सर। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बीपी है, और उससे वजह से स्ट्रोक हुआ। 10 साल हो गए सर, 10 साल से बीपी है, और बीपी का भाई शुगर उसके साथ साथ आ गया। तो 10 साल से मैं बीपी और शुगर से पीड़ित हूँ। तो क्या हुआ सर, रिसेंटली मैंने नारायण हृदयालय, बैंगलोर से हूँ मैं, वहां चेक करवाया। तो बॉडी हेल्थ चेकअप करने से ब्लॉकेज वाकेज कुछ नहीं है। तो सिर्फ ये है कि वाल्व अभी मेरा क्या हो गया है, जैसे जिम करते हैं ना सर, जिम करने से हार्ट, जिम करने जैसा जब मसल बढ़ जाता है। मुझे बीपी पता नहीं था, मैं ट्रीटमेंट में नहीं था, शायद इसलिए मेरा हार्ट थोड़ा बल्ज है। बल्ज मतलब थोड़ा मतलब पूछे ना उसको। बल्ज हो गया, वो बोलते हैं। हाँ सर। और सेकंड चीज बोलते हैं कि मेरा वाल्व वाल्व है ना, वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अभी इस कंडीशन में है कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। नीदर ऑपरेशन कर, मतलब ऑपरेशन करने के हद में नहीं है वो। अभी 35% शिफ्ट हुआ है। अभी वो 70% होने तक मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैं ब्लड थिनर, बीपी, शुगर दिन के 8 टैबलेट ले रहा हूँ सर। एज छोटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और छोटे बच्चे हैं। तो मेरे को क्या है ना सर, मेरे को ज्यादा मतलब मैं अभी बच्चों का एक लाइफ सेटल कर देना है। अगले 10 या 15 साल बचूंगा तो भी ठीक है सर, लेकिन मुझे इससे बाहर आना है सर। मैं मेडिटेशन वेडिटेशन ट्राई किया, और मेरे को 2 बच्चियां हैं, दोनों लड़कियां हैं, उनका लाइफ सेटल करना है सर। या अगर 15-20 साल का बच गया तो भी काफी है। और मुझे कोई भी नहीं है, और भगवान धन देता है तो दान धर्म ये सब करता रहता हूँ। लेकिन मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, जो भी है बांट के खाता हूँ, छीन के नहीं खाता हूँ। लेकिन प्राइवेट में बोलते हैं कि खून चूस लिया सर, 12 घंटे 15 घंटे। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे करना ही पड़ता है, नहीं तो नौकरी से नहीं निकाल देंगे, नौकरी से नहीं निकाल तो घर नहीं चल पाएगा, 7 लोग डिपेंडेंट है। तो ये सब प्रॉब्लम है सर। तो यहाँ लाइफ देखिए लाइन आपको मुझे दिखा आपको आपका आपको ये बता देख के।
आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। और हाँ अभी 10 साल 15 साल क्या, ज्यादा दवाई खाओगे तो फिर पता नहीं, मगर दवाई अगर धीरे धीरे खत्म कर दोगे तो लाइफ अभी बहुत अच्छी है आपकी, है यस ना। तो पहली हाँ सर बात, आपको दोष क्या है मैं हाँ बता देता हूँ। इसे कहते हैं दक्षिण बल। दक्षिण बल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप शरीर को टाइट करके एक समय तक, 1 मिनट तक अगर रोकने की कोशिश करोगे तो आपको तकलीफ होगी। यानी कि जोर लगा के अगर आपको रुक जाओगे वहीं पे, लगातार कॉन्टिन्यूस जोर लगाओगे तो वो नहीं लगेगा शरीर से। दक्षिण बल कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये दक्षिण बल कम है आपके शरीर के अंदर। इसकी वजह से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो आपको आया है, ये वाल्व का इशू आया है ना। कभी भी एनर्जी कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो सूजन आता है, ये समझो। ऊर्जा कम हो जाएगी तो बॉडी के ऑर्गन्स में भी सूजन आएगी, शरीर में भी सूजन आती है ना। तो एलवीएच जो आपको है और वाल्व का इशू जो बता रहे हैं, वाल्व का बंद होना और खुलना जो है उसमें स्ट्रेंथ, वो केवल उसका पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं है। वैसे ही हार्ट का स्ट्रेंथ अभी कमजोर है, इसे दक्षिण बल कहते हैं। दक्षिण बल कहते हैं। दक्षिण बल का मतलब होता है आप जितनी लंबी सांस खींच सकते हैं उससे कम से कम 4 से 5 से 6 गुना। अगर आप रोक सके 4 गुना रोके तो ठीक है, नॉर्मल। 5 गुना रोके तो बढ़िया, 6 गुना रोके तो और भी बढ़िया। वो शक्ति आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर कम है। अभी आप कुंभक करना शुरू करोगे ना तो आप क्या देखोगे कि ये पार्ट धीरे धीरे, ऐसे में क्या होता है, एंजाइटी भी होती है, घबराहट भी होती है। ठीक है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस बात का डर भी होता है कि आगे चल के कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपके शरीर में एक और चीज होती है, उसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। गूगल में डाल के पढ़ लो, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। यानी कि आपके शरीर का जो बचाने का नियम है ना, इमरजेंसी का स्विच है ना, वो चालू हो जाता है। इमरजेंसी का स्विच चालू हो जाता है बीच बीच में, उसको खतरा लगता है शरीर को, क्योंकि दक्षिण बल कम है तो उसको खतरा लगता है बीच बीच में। इसी वजह से एंजाइटी या फिर पैल्पिटेशन या फिर घबराहट या फिर जैसे भूख ना लगना या भूख पे ठीक से पचना नहीं है, ऐसा भी कई लोगों में हो सकता है। होमवर्क करेंगे तो आपका एलवीएच की कंडीशन भी अगर आप अभी थाम लोगे उसको तो सेटल हो जाएगा। जहां तक स्ट्रोक की बात है, तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे केस हैं कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आज के समय ह्यूमैनिटी कुंभक नहीं करती तो हार्ट अटैक से नहीं बचा सकते उसको, साफ बोल रहा हूं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ब्लड थिनर जो लोग भी खा रहे हैं उनके अंदर स्ट्रोक होने के चांस और बढ़ जाते हैं। जो लोग भी ब्लड थिनर खा रहे हैं, दूसरी बात वो मसल लॉस होगा उनका। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीच में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद में मसल डैमेज या मसल लॉस या मसल वेस्टिंग बहुत तेजी से होगा। ठीक है ना, एल्कलिनिटी वाला पार्ट जो है ना वो वीक हो रहा है। हम ब्लड को अगर थिन करने की कोशिश करेंगे तो एसिडोसिस भी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कि हम समझ नहीं पा रहे उसको। इसी वजह से कोई भी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक या हार्ट अटैक ये दुनिया में बढ़ रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है। जो कुंभक करेगा वो ही बचेगा आगे चल के, मैं आपको बता रहा हूं। कुंभक नहीं करेगा जो, वो नहीं बचा सकते दवाई से, तो बिल्कुल भी वो और नजदीक ला रहे हैं मृत्यु। तो हम आपको दवाई खत्म करने के लिए तो बोल नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं, पहले कुंभक करो, पहले अपने शरीर को, हार्ट को मजबूत कर लो, उसके बाद धीरे धीरे करके अगर जरूरत ना पड़े तो दवाई से निकल जाइए और हेल्दी हो जाएंगे। और बहुत लोग दवाई से निकल गए। Anand ji, can you unmute yourself now? Please unmute. तक पहुंच रही है श्रीमान जी। आर यू गेटिंग मी? यस 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 यस। स्वामी जी मेरा प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। मेरी आयु 82 वर्ष पूरे कर चुका हूं और मुझे 54 वर्ष की उम्र में मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का अटैक हुआ था। वो आयु ऐसी थी जब मैं अपने परिश्रम करने के चरम पे था। तो डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दी थी, जिससे मेरे मन में विरोध उपजा और मैंने कहा मैं कोई दवा नहीं लूंगा। और दवाई लेने से कोई भी अगर जीवन जीना है तो मुझे ऐसे उधार का जीवन नहीं जीना है। तो मैंने 25 साल तक कोई दवा नहीं ली स्वामी जी।
उसके बाद मेरी निगाह थोड़ी कमज़ोर हुई, तब मेरा ब्लड प्रेशर नपा, मुझे मालूम हुआ कि मुझे हल्का ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर। तो मुझे अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर से बात करनी पड़ी। तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझको कहा कि आपको एक आप बीपी की गोली ले लीजिए। वो बीपी की गोली शुरू हुई, उसके बाद एक फिर ब्लड थिनर डायलेटर, इकोस्प्रिन शुरू हुई, एंड सो ऑन। 2-3 दवाएं और शुरू हो गई, हार्ट की भी। और मैं दवाओं के कॉकस में हूँ जी जिनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मुझको। ये दवाएं लेते हुए लगभग मुझको 10 वर्ष हो गए, और उस कॉकस से मैं निकलना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर तो बताते नहीं है, लेकिन मुझको गूगल के जरिए से मालूम हुआ कि जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उन दवाओं के, उन सबका आक्रमण मेरे ऊपर हो चुका है। जी जैसे इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेडेक वगैरह वगैरह। तो मैं इससे निकलना चाहता हूं, इसलिए आपकी शरण में आना चाहता हूं। आप क्या इसका हाँ 82 हाँ वर्ष की आयु मुनासिब आयु है मुझे कि मैं आपके पास पहुंचूं? बिल्कुल। अभी आपकी मेरा ज्वलंत उम्र, क्वेश्चन ये है आपसे। पहली बात तो आपको बोलूं, 84 से पहले जाना नहीं है, ठीक है। और जी जी। आपकी अभी लंबी उम्र, और भी ज्यादा उम्र है। नहीं, मैं तैयार हूँ, पूर्णतः तो तैयार हूँ, क्योंकि मैं मेरी पत्नी पिछले 5 साल पहले चली गई थी, और हम्म मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी परिवार की नहीं है, तो मैं पूरा फ्री हूँ। अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन और बच्चों के साथ। हाँ, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और ये आप कुंभक करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना आपको फर्क पड़ गया। किसी भी उम्र में जोर लगाने की शक्ति ही आपको जीवन जीने की शक्ति देती है, कितना जोर लगा सकते, यानी कुंभक ही आपको जीवन देता है, क्योंकि जोर आप बिना सांस रोके नहीं लगा सकते। तो वही क्षमता कम होती जाती है, और आपको है समान दोष, यानी कि शरीर में कोई चीज प्रॉपरली फैल नहीं पाती। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो आप कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर मसल की जगह को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वहां वो इंफ्रैक्ट हो जाता है या इंफ्रैक्शन होता है। तो शरीर में फैलाने का जो नियम है, फैलती हुई ऊर्जा या फिर शक्ति जो है, उसी को समान शक्ति कहते हैं। वो जब कमजोर हो जाती है तो ऐसी स्थिति को वात रोग कहा जाता है, या वात विकार कहा जाता है। वात विकार के कारण किसी भी चीज का किसी भी चीज की चाल अंदर, शरीर के अंदर, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो खून के बहने की हो, चाहे वो फूड के एक जगह से दूसरे जगह जाने की हो, टॉक्सिन्स के जाने की हो, नर्वस सिस्टम में जो सेंसेशन फ्लो होते हैं, वो सब अस्थिर हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फ्लक्चुएशन होता है, हर चीज में फ्लक्चुएशन, दिमाग में फ्लक्चुएशन होता, स्थिर नहीं रहता। ऐसे में कभी एंजाइटी होगी, कभी मतलब रेट्स में, हार्ट के बीट्स में भी डिफरेंसेस आते हैं, है ना। कई कई बार भाई कुछ लोगों में हार्ट बीट मिस भी होता है, वो लोग कहते हैं मिस हो गया, बीच में मिस होता है, उस तरीके की चीजें आती हैं। कुंभक करेंगे, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, जितनी उम्र में करें, आपको अगर लाइफ अच्छी करनी है तो कुंभक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी आपकी उम्र है, और आपके अंदर एक जिंदा दिली भी है, उसको वापस निखार के लाइए, और इस समय कुंभक कीजिए, और समाज के लिए और थोड़ा कंट्रीब्यूशन कीजिए, काम कीजिए, जो आपके बस में हो वो सब कीजिए। सेवा करके जाना, ऐसे नहीं जाना। So we have a couple of younger people also. Sagar, you have raised your hand. Sagar जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, and I'm asking you to unmute yourself. स्वामी जी नमस्कार। मैं सागर हूँ, पुणे से। और मुझे 2022 में जनवरी में एंजाइटी और ये सब चीज़ों की वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे बीपी वगैरह हुआ है, और पाल्पिटेशन हुआ था इनिशियली। तो डॉक्टर के पास गया था, तब समझ में आया कि मुझे बीपी वगैरह आया है। तो मुझे अभी जो फिलहाल तकलीफ हो रही है गए 2 साल से, एक टॉपिक बीट्स, थोड़ा बहुत, कभी तो ब्रीदिंग इशू आता है, एवरीडे फेंटिंग होता था, कभी आयुर्वेदिक की गोलियां लेता हूँ तो फेंटिंग गए
एक महीना या 25 दिन तो कम हो गया है। ब्लड प्रेशर आज की डेट में, मैं 6 बजे मैंने, मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, एकदम थोड़ा सा आया था, तो मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरे मशीन है, तो वो 170/100 था। और मैं अभी भी मेरे हाथ में मशीन लगाया हुआ है, तो बीच बीच में मैं चेक कर रहा हूँ। तो वो एज क्या आज है तुम्हारी? एज क्या है? 34 है सर। तो मुझे ये फ्लक्चुएट हो रहा है 94 90, अभी 90 से लेकर 100 के बीच में, और ऊपर जा रहा है 145। तो अब तक तो कुछ नहीं हुआ था, मैं बीच बीच में जब भी कुछ तकलीफ होता था चेक करता था, तो नॉर्मल दिखता था। पर आज की डेट में मुझे, यानी कि आज ही इतने 2 साल में मुझे ये थोड़ा आगे जाता हुआ दिख रहा था। तो अभी और तो, एक, हाँ, अभी तो ठीक से और एक, जवान भी नहीं हुए हो। हाँ सर। तो अभी क्या करना है देखो, कितना भी बोलो, सोल्यूशन चाहिए ना अपने को। प्रॉब्लम कहाँ पे है बता देता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे बता देता हूँ। तुम्हारी सांस खींचने की शक्ति बहुत कम है। कितना सांस खींच सकते हो वो कम है। तो कोशिश करो कभी भी बंद जगह पे मत रहो। अगर रूम बंद रहेगा ना, वेंटिलेटेड नहीं रहेगा, तो थोड़ा वेंटिलेशन में रहना है, क्योंकि सांस खींचने की क्षमता बहुत कम है शरीर की। अगर ये बढ़ा दें तो ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सेटल हो जाएगा, और अभी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कुंभक करना शुरू करो, इसको छोड़ना नहीं है ना। लाइफ अच्छी करनी है कि नहीं? अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगले 1 साल में, देखना अभी 5 साल एज और कम हो जाएगी तुम्हारी, है ना। 1 साल कुंभक करो, 5 साल एज कम हो जाएगी। और फिर खूब काम करो और खूब अच्छा करो, अपने जीवन में सक्सेसफुल हो। सांस खींचने की शक्ति जो है शरीर की है ना, वो कम है, अपान में शक्ति कम है। मूलाधार कमजोर है, इसको ऐसा भी कहते हैं, मूलाधार कमजोर है। ठीक है, अपान शक्ति कम है, कुंभक से ये बढ़ जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इसको नहीं अगर ठीक करते, दवाई से नहीं ठीक होता, है ना। So there is Kanupriya and there is Rahul. I'm purposely picking up younger lot right now. Kanupriya, are you able to unmute yourself? Unmute yourself. Thank you. Thank you. Namaste, Swamiji. My questions are for actually my both my parents. First, my father is going through a lot of BP fluctuation from 8 months. He has always had high BP और उनका पूरा जो कार्यकाल है वो बहुत over stress and responsibilities में उन्होंने निकाला. Now his BP it goes up to 180, 110, 113, and same day पे it falls down to go to 90/60 also. And he uses catheter for urination, plus his creatinine has also been fluctuating. It goes up to 1.7. फिर उसको हम मेडिसिन से लेकर के आते हैं 1.2 1.3 आ जाता है, तो उनकी कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ चलती हैं फॉर डायबिटीज, फॉर the urology problem, and for BP also. And the challenge is that he has an overthinking mind. He thinks a lot, overthinks. And whenever, I have tried to help him or advise him on breath work, he is very reluctant to do that. And अभी 2 महीने में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गया है. So I want him to, स्टार्ट दिस प्रोग्राम. आपका मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ब्रेथ वर्क से कनेक्टेड है. तो अभी उनके लिए कैसे वर्कआउट करनी चाहिए चीजें, व्हाट इज हिज मेन इशू, एंड हाउ वी कैन पुट हिम ऑन दिस पाथ. The how to put him in this path, that is what you need to figure out. ठीक है ना, क्योंकि अगर वो नहीं करना चाहते, कहते हैं घोड़े को तालाब तक तो ले जाओगे, पानी कैसे पिलाओगे? तो दैट नीड्स टू, तो लेकिन सी, एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी, इजंट इट? ओनली देन द लाइफ विल बिकम बेटर, अदरवाइज तो वो एक अनहेल्दी इंसान का लाइफ क्या। अब ये जो इतना भी कर रहे हैं, हिज प्रेशर इकोसिस्टम इज वीक। दक्षिण बल इज वीक, प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का कमजोर है। ये सेटल हो जाएगा if he does kumbhak. It is not, see, it is normally we say anything related to breath, we say breath work. No, it is not pranayama. Breath work has been renamed or a different name for pranayama. We are not making people do yoga. We don't want them to become mukta or get samadhi. हमें समाधि नहीं देना लोगों को, हमें हेल्थ देना.
So it's a part of Ayurveda. This Kumbhak is a part of Ayurveda. So we consciously call this as Kumbhak, not breathwork, because people relate breathwork with pranayama or yoga. We are not doing it. Stabilizing, उनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, स्टेबल नहीं. तो प्रेशर इकोसिस्टम की स्टेडीनेस नहीं, वो कभी कम कभी ज्यादा ऐसा हो रहा है. इसी को दक्षिण बल भी कहते हैं. ये कुंभक से ठीक हो. द सेकेंड पार्ट इज इवन द क्रिएटिनिन लेवल विल कम डाउन बाय कुंभक. किडनी का जिनको इश्यूज है वो क्रिएटिनिन लेवल भी कम, क्योंकि दैट इज ऑल्सो, देखो आयुर्वेद में किडनी इश्यूज को कफ दोष कहते हैं, कफवात दोष कहते हैं. इफ वी इंप्रूव द प्रेशर इकोसिस्टम द क्लियरेंस विल इंप्रूव. प्रेशर में ही तो क्लियर होती है ना चीजें, राइट? सो दिस इज अ प्रेशर वर्क, नॉट ब्रेथ वर्क. इफ आई से इट वेरी वेरी पर्टिकुलरली. सो द वात वर्क भी कह सकते हैं, बिकॉज द प्रेशर इज कॉल्ड वात इन आयुर्वेद. तो वात पित्त कफ का जो नियम है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं. उनको बहुत फायदा होगा अगर वो करेंगे तो. Okay, I can see Rahul Lalwani ji, if you have a question, please type it. Adesh 9, आप भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. जैसे संतोष मटकर जी ने पूछा, आई हैव हार्ट पंपिंग प्रॉब्लम, माय हार्ट इज रनिंग ओनली 25%. भाई देखो, आप समझो इस बात को, आप अपने दिमाग को खोलो. कोई भी क्लियरेंस प्रेशर में होता है. आप प्रेशर का सिस्टम ठीक कर लो अपने शरीर का, वो ठीक हो जाएगा. दवाई नहीं कर सकती ठीक. कोलैप्स के चांस बढ़ जाएंगे, हार्ट कोलैप्स के, अगर उसको ज्यादा लूज करोगे, ज्यादा बीटा ब्लॉकर खाया तो हार्ट कोलैप्स के चांस बढ़ जाएंगे. ज्यादा आपने अगर एस इनहिबिटर खा लिया, लोसाकार्टोजा, रिपेस्को, स्टेल्मा, टेल्मिसार्टन, पोटेशियम हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ऐसा कॉम्बिनेशन में देते हैं आपको दवाई, तो किडनी भी खराब होगी, साथ में क्या होगा, पानी की मात्रा भी शरीर में से निकल जाएगी, तो फिर हार्ट पे लोड बढ़ जाता है हमेशा. ऐसा मत सोचिए कि जो करंट डिस्पेंसेशन ऑफ थेरेपी, जो आज का थेरेपी का मेथड है, उसमें कोई समझदारी है, क्योंकि 100 साल में एक तो इंसान ठीक होना चाहिए था. देयर इज नो प्रूफ इन द लास्ट 100 years even a single person has come out of blood pressure or heart disease. In fact, it has become number one cause of death. तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. The current treatment methodology is just dumb to its core, dumbest humanity has ever seen. बच्चों को भी हार्ट का डिजीज हो रहा है, पता है? हमारे आगे की जनरेशन के बच्चे बच्चे हार्ट डिजीज लेके घूमेंगे, डायबिटीज लेके घूमेंगे. व्हाट आर वी डूइंग टू आवरसेल्व्स? ये क्वेश्चन पूछिए. Adesh Nayan ji, I'm asking you to unmute. Okay. I am suffering from high BP since many years. High BP is affecting my kidneys now. I also have high TSH. TSH जब भी हाई होता है आपका, TSH is a hormone which is released from pituitary gland. पहली बात तो इसको थायराइड के साथ में टैग करते हैं. एक थायराइड का इश्यू नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा TSH इसलिए रिलीज हो रहा है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू कन्वर्ट फूड इनटू प्रोटीन प्रॉपर्ली. ठीक है, जब प्रोटीन में नहीं कर पाएगा तो बॉडी सिग्नल देगा कि और कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करो. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, जब भी घबराहट होगी, आपके किडनीज के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, वो कई सारे बायोकेमिकल रिलीज करते हैं, विच इज एन इमरजेंसी मेजर, है ना. इमरजेंसी स्विच है वो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं. वो इमरजेंसी स्विच जैसे ही ऑन होगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ द बॉडी एक्चुअली मैनेजेस एन इमरजेंसी. तो ऐसे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. द सेकेंड पार्ट आई टोल्ड यू, थायराइड, शायद यहां नहीं बोला, इसके पहले वाले वेबिनार में बोला होगा. थायराइड का इश्यू जो होता है वो बेसिकली is an issue where your body is not able to transport things properly in the body in itself. कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा.
ट्रांसपोर्ट हमेशा कोई ना कोई प्रोटीन या प्रोटीनियस स्ट्रक्चर के साथ में होता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, लाइक इंसुलिन और इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स, बायोकेमिकल्स हमारे शरीर में होते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो नहीं होगा ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड बॉडी प्रेशर बढ़ा के उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि मैं इन चीजों को बहुत कोरिलेट करके आपको पूरी कहानी सुना सकता हूं, बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लास। आपको ठीक होना है ना, आपको ठीक होना है तो आप ये कुंभक करो। अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो अपना नंबर छोड़िए चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में, and we'll take your history and some parameters, and then we'll get back to you with the right program, because we run different kinds of program. She has already, you have seen her case and she's already been recommended the BP program. I think the confusion probably comes TSH, so on and so forth. So, all right, so it is getting close to 9. I think we'll not be able to take further questions from Swamiji. We'll need to let him go right now. So, बाकी लोग जो है, thank you Swamiji for taking out time to